great pleasure to be here for this function. I am here to discuss various cybersecurity issues and cybercrime issues faced by these common civilians as well as the banking sector throughout India. And it is a great opportunity for me to discuss various cybercrimes happens to various individuals. To start with, we have to take the account of the world population. Around about 800 crore people are living across the world. And out of these 800 crore people, 664 crore people are using mobile phones. And all these mobile phones has access of this internet activity. And out of these 664 mobile phones, in India, 118 crore mobile phones are used. And out of these 118 crore mobile phones, 84 individuals in India, they are accessing everything through internet. And there is another major concern about the social media. Around about 500 crore people across the world are using social media. And as far as the India is concerned, around about 50 plus minus crore people are using this social media. And they are accessing all these social media or all these apps through these mobile phones, laptops, computers. And this is a great opportunity for the cyber criminals. They have created scam centers in Southeast Asia. Cambodia-like countries are there. Laos is area there. Vietnam is there. Even Nepal, they are also created these scam centers where they are inviting the youths across the world. They have invited the youths from around about 60 countries for jobs. And after getting these youths to the scam centers, they are extracting all these visas, passports from these youths, and they are giving training to them how to speak, how to create malwares, how to deceive the people, how to impersonate the profiles, various profiles of these individuals on social media, and how to deceive and how to steal. Means we are facing an invisible enemy. He is threatening us and stealing our money, hard-earned money. And that is the reality in cybercrimes. They are earning round about $6 trillion per year. That is after America, China, they are there. Even India's GDP is also low as far as the income of the cyber criminals are concerned. And from 2016, we entered in digital area. And our government has set up a UPI system, that's a Unified Payment Interface. That is a system, it is developed by Indian government and which can be accepted by all other governments across the world. Some countries are also doing UPI payments. UPI payments means it identifies your mobile phone, it identifies your SIM card, your identity, and then PIN is provided to you. And by using this UPI payment system, you are doing transactions. And these and all other activities done by this banking system earlier, they were replaced by this UPI system. And that is also a great benefit for this
cyber criminals. As far as your banking system is concerned, we have public sector banks, then cooperative sector banks, postal banks, urban cooperative banks, small saving banks, and people are depositing money in these banks. And the cyber criminals are harvesting, they are manipulating your data, which is in XML format or other formats. They are sending malwares there because what happens, the individual who is working in your banking system, he is not aware about these cyber criminal activities. He is using his email, he is opening his email on the computer which is provided by the bank for the banking purpose. And if that email is hacked, and if that the malware is sent to that email, the system, whole system will be accessed by these cyber criminals. They can easily manipulate your data. They can set commands. They can divert whatever the money in your bank that can be diverted to their mule accounts. Mule accounts is another weapon used by the cyber criminals. Mule accounts means is an account is in the name of some individual, genuine individuals. They may be drivers, they may be the service providers, they are hard-earning money people, homemakers, and these mule accounts are used for diverting these whatever the cyber criminal activities. And SIM card also, the mule SIM cards also are used by the cyber criminals. We have arrested few gangs and we have seen their modus operandi, and they are largely using these emails, they are largely using these mule accounts, and they are largely using these mule SIM cards. And there are various sections of our country, or various states of the country, somewhere in Bangladesh, in West Bengal, they are procuring the mule SIM cards. In Maharashtra, they are having large number of mule accounts in various banks. And these mule accounts and these SIM cards are used by the cyber criminals to extract the hard-earned money by the individual which is stored in banks. What can be done? तो मैं अभी आगे थोड़ा हिंदी में बात करूंगा. तो इसमें ऐसा ही है कि टेक्नोलॉजी को तो हम ये नहीं बाईपास नहीं कर सकते, और ये टेक्नोलॉजी पुराने ज़माने में आके गई है. जिसको हम देवता, गॉड इसका नाम देते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी थी. जो भी विनर रहता है उसको हम गॉड कहलाते हैं, उसकी हिस्ट्री बन जाती है, उसके बुक्स बन जाते हैं, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि वो हिडन रहते हैं, ट्रूथ हिडन होते हैं. जो भी साइंस है उसमें हिडन रहता है, तभी वो कादम्बरी, कोई बुक सेल आउट हो जाता है, लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें मिरेकल्स होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है. तो ये टेक्नोलॉजी पहले आके गई है. जैसे कि महाभारत के टाइम में हम देखे, जो भी वॉरफेयर के लिए गए थे कुरुक्षेत्र में, उनका जन्म ही हम सोच ले तो ही टेक्नोलॉजी का जन्म था. अर्जुन हो, कर्ण हो, जितने भी योद्धा उधर आए थे वो सब टेक्नोलॉजी से लेस थे. उनके जन्म से ही टेक्नोलॉजी थी, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका जन्म हुआ था. और जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जो कृष्ण थे, उसको भगवान बोलते हैं, तो उनको ये सब मालूम था. आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नहीं है, जितना भी डेटा क्रिएट होता है रेगुलर ट्रांजैक्शन से, जितना भी डेटा शेयर होता है, उसके ऊपर डेटा एनालिसिस का, मशीन लर्निंग का, डेटा स्वैपिंग का सॉफ्टवेयर बिठाया जाता है. और वो डेटा एनालिसिस करके जो भी डिज़ायर रिजल्ट चाहिए उस डेटा से वो हमें लाके देता है. उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. अखिल मानवता का कल्याण करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही
जरूरी है। डिजिटाइजेशन की बहुत सारी ज़रूरत है। सोशल मीडिया, आज जो सोशल मीडिया हम जो यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। ऐसे पूरे इंडिया में 37 चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। उनका किधर भी स्टोर नहीं है, किधर भी दुकान नहीं है, उनका किधर भी प्रोडक्शन नहीं है, उनका किधर भी मार्केट प्लेस नहीं है। वो क्या करते हैं? इंडिविजुअल लोगों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो क्या चाहता है, वो उनको मार्केट मार्केट के लिए जो कस्टमर चाहते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए, जितने भी चैटिंग प्लेटफॉर्म्स आए, वो पहला मार्केट ढूंढते हैं। अभी देखिए यूट्यूब, वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी रील्स आते हैं, जितने भी वीडियोस आते हैं, वो किसी ने उधर डाले हैं, उसका उनको पेमेंट मिलता है। अमेज़ॉन, उनका पूरे वर्ल्ड में किधर भी उनका कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, किधर भी उनका शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली कस्टमर को सर्विस वेंडर एक अलग जगह पे रहता है, जो लेने वाला है वो अलग जगह पे रहता है। ऐसे सोशल मीडिया पे जितने भी कंटेंट हम सप्लाई करते, इंडिविजुअल जितने भी रील बनाए जाते, उससे वो कस्टमर ढूंढते हैं। और वो जो डेटा जो मिलता है, वो डेटा ट्रेडर के हाथ में लगता है, वेंडर के हाथ में लगता है। और वो डेटा से पूरी मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड की चल रही है। आज चाइना में कुछ बन रहा है, तो हम कोई भी चैटिंग प्लेटफॉर्म पे जाके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके वो चीज़ हमारे गांव में ला सकते हैं, हमारे घर में ला सकते हैं। ये सोशल मीडिया का फ़ायदा है। अभी बहुत सारे लड़कियां रहती है, यूथ्स रहते हैं, उनके कोई आइडियाज़ रहती है कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी रहती है, वो उन्होंने रील बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, लोगों ने देख लिया, तो उनको कस्टमर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं कि वो डांस करती है, कभी कभी बैक स्टेज डांसर रहती है, थोड़े थोड़े रील बनाती है, फिर उनको बुलावा आता है, उनको आमंत्रण मिलता है, वो बहुत बड़े प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और पैसा भी मिलता है। ये जो कंटेंट क्रिएटर का जो सोशल मीडिया है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। और जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म जितने भी क्रिएट हो गए हैं, अभी गूगल खाली आपको फैसिलिटी दे रहा है, वो कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता है। गूगल पे जाके कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। गूगल पे जाके आपने जितने भी सर्च की, अभी साइबर क्रिमिनल उसको डेटा कैसा मिलता है? हम गूगल पे जाएंगे, कोई भी सर्च इंजन पे जाएंगे, हम कोई सर्च करेंगे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, या कोई कंटेंट देखना है, कोई म्यूजिक देखना है, वीडियो देखना है, या कोई एग्रीकल्चर टूल देखना है, कोई टेक्नोलॉजी देखनी है, लेनी है। जैसे हम सर्च करेंगे, या कोई हमें जो सर्विस चाहिए, हमें घर में कुछ नल बंद हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, लाइट गई है, बल्ब बिठाना है, छोटा मोटा काम करना है, जैसा हम सर्च करेंगे वो डेटा जनरेट हो जाता है। अभी हम मेडिकल स्टोर में जाएंगे, मेडिकल स्टोर में जाते कि पूरा मेडिकल परचेस करते हैं, जाते जाते वो आदमी आराम से पूछता है आपका मोबाइल नंबर क्या है, हम आसानी से उसको मोबाइल नंबर देते हैं। ये डेटा जो भी है क्रिएट होता है, ये डेटा कोई तो डेटा सेंटर पे स्टोर हो जाता है, और इसको बोलते हैं ओपन सोर्स डेटा। ये कोई पर्पज से नहीं दिया होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी पोर्टल खोल देती है, जैसे कि लैंड पोर्टल है, ये तेलंगाना स्टेट में लैंड पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया था, जैसे कि लोगों को आसानी हो जाए उनकी लैंड का सेल परचेस के लिए। वो डेटा ओपन सोर्स डेटा हो गया। वो डेटा जैसे ही साइबर क्रिमिनल के हाथ में लग जाता है, तो उधर आपकी फिंगरप्रिंट रहती है, आपके फ़ोटो रहते हैं, आपका आधार कार्ड रहता है, और ये सब डेटा साइबर क्रिमिनल के पास जाता है। इसका यूज़ वो करते हैं, वो डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के बाद XYZ आदमी है, उसका ये फ़ोटो है, ये आधार कार्ड है, इसका एक पैन कार्ड है, इसके बैंक डिटेल्स ये है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री ये है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सर्च करता है कि ये म्यूजिक देखता है, ये वीडियो देखता है,
या वो एग्रीकल्चर में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको ट्रैवल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये फ्लाइट से ज़्यादा घूमता है, ये ट्रेन से घूमता है, कोई भी किधर भी गया तो उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, जितने भी हम फोटो वीडियो पोस्ट करेंगे साइबर क्रिमिनल्स की उसके ऊपर वॉच रहती है। वो हमें लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, वैसा भी उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में जाता है तो डेटा हर एक इंडिविजुअल का, हर एक कोऑपरेटिव बैंक का, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक का या कोई पुलिस स्टेशन का भी ईमेल, उधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या, ये सब डेटा एक्सट्रैक्ट करने में वो लगे रहते हैं। अभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन कैसी निकालनी है, पुलिस वाला क्या देखेगा कि जैसे कि बहुत दिन पहले एक हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है बॉम्बे का, उसमें एक ईमेल आ गया, टेररिस्ट वांटेड इन बॉम्बे ब्लास्ट, गन डाउन इन JNK, ये PDF फाइल आ गई थी। तो कोई भी पुलिस वाला देखेगा कि यार अपने बॉम्बे में ब्लास्ट हो गया था, ये क्रिमिनल है, वो JNK में उसको गन डाउन किया है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन था, क्या है। जैसे उसने ईमेल ओपन किया, PDF ओपन किया, उसमें मालवेयर था। मालवेयर ओपन करने के बाद सीधा मालवेयर कंप्यूटर में चला गया और कंप्यूटर से DDoS अटैक हो गया। उस कंप्यूटर से बहुत सारे ईमेल बाहर निकल गए कि जैसे कि लोगों को लगा कि ये पुलिस स्टेशन कोई तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और वो भी अदर भी कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गए। तो ऐसा है कि वो मालवेयर का था कि जैसे कि आपके भी बैंक में ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए ये साइबर क्रिमिनल्स को ईमेल चाहिए, आपके आधार कार्ड चाहिए, आपके प्रोफाइल के फ़ोटो चाहिए। जैसे कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के प्रोफाइल के ऊपर हम DP जो रखते हैं वो किसका भी रख सकते हैं, अपना खुद का फ़ोटो रख सकते हैं, बाजू वाले का रख सकते हैं, कोई रख सकते हैं, जहाँ हम जाते हैं उस एरिया का भी रख सकते हैं। तो ये पूरे इम्पर्सोनेशन के लिए साइबर क्रिमिनल को चाहिए। और साइबर क्रिमिनल इसका यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे कि कोई व्हाट्सएप पे ऊपर कॉल आया, अभी हमें किसी का भी मोबाइल नंबर मालूम नहीं है, किसी का भी लैंडलाइन नंबर मालूम नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, उसके ऊपर नाम जो डिस्प्ले हो जाएगा तो हम समझ लेते कि उसका ही व्हाट्सएप मुझे कॉल आया है। कोई फेसबुक से किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और उसके प्रोफाइल के DP के ऊपर उसका फ़ोटो आ गया कि जैसे कि हमें मालूम है कि ये उसका DP में ये फ़ोटो है, तो हम उसकी इंक्वायरी ज़्यादा नहीं करते। जैसे फेसबुक के ऊपर किसी ने एक्सेप्ट किया उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो उस टाइम से वो जो डेटा इसके फेसबुक अकाउंट पे है, जितने भी रील्स है, जितने भी वीडियोज़ है, वो सब साइबर क्रिमिनल के हाथ में जाते हैं। और उसके थ्रू वो उसके जितने भी फ्रेंड है, जिसने भी इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, सब लोगों को फेसबुक से मैसेज भेजने शुरू कर देता है। और मैसेज भी ऐसे रहते हैं कि बहुत सारे ट्रिकिश मैसेज रहते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप का यूज़ ऐसा गैर इस्तेमाल भी हो सकता है। ये यूपी में घटना घड़ी थी, एक लेडी टीचर थी, उनको एक व्हाट्सएप से पुलिस वाले का DP लगाया था उसके ऊपर, और मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और आपकी लड़की को हमने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ा गया है। तो वो सुनते ही वो पूरा उसका BP वगैरह हाई हो गया, तुरंत ही उनको एडमिट करना पड़ा, उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे की प्रोफाइल का मिसमैनेजमेंट। तो आज के तारीख में ऐसे इतनी सारी समस्याएं ये साइबर क्रिमिनल के वजह से हमारी ज़िंदगी में आई है। और एक एग्जांपल है, हम बहुत सारी बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट मीन्स दूसरा तीसरा कोई नहीं है, खाली वीडियो कॉल करना है और आपको वीडियो पे एंगेज रखना है, आपने वीडियो कट ऑफ नहीं करना है। और हम किससे बात करेंगे कि जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज जो है, हमारे बाजू वाला पुलिस स्टेशन है वो LE है, उसके बाद क्राइम ब्रांच वाला वो LE हो गया, ट्रैफिक ब्रांच पुलिस वाला LE हो गया, फिर वो कस्टम वाला LE हो गया, फिर वो ED, फिर वो CBI, फिर वो एयरपोर्ट, ये सब हो गए LE। मुझे जिसको भी अरेस्ट, सर्च और सीजर की पावर रहती है, ये आदमी इंक्वायरी कर सकते हैं,
पुलिस वाला इंक्वायरी कर सकता है, ईडी वाला इंक्वायरी सकता है, सीबीआई वाला इंक्वायरी कर सकता है। तो ऐसा बहाना बना के लोगों को वो फ़ोन करते हैं। एक टिपिकल एग्जाम्पल ऐसा कर्नाटक में हुआ था कि एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, उम्र भी 50 के आसपास थी। उनको एक कॉल आया कि आपका फ़ोन ब्लॉक किया जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर है अभी ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर से जो लिंक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से कोई कैनरा बैंक में खाता ओपन हो गया है और उस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। हालांकि ये जो ऑफिशियल थे उनका कैनरा बैंक में कोई भी खाता ही नहीं था। तो वो बोले कि मेरा कैनरा बैंक में खाता नहीं है और मेरा नंबर और आधार कार्ड तो बराबर है, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा जो मैंने पहले आपको बोला था, आधार कार्ड का डेटा उनको मालूम रहता है। जैसे ही आधार कार्ड उन्होंने डिस्प्ले किया, जैसे ही बोल दिया, वैसे लोगों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरा आधार कार्ड की यूज़ करके किसी ने मेरा अकाउंट कैनरा बैंक में अकाउंट किया होगा, ऐसा लगा। दूसरा बात ये हो गया कि वो फ़ोन रखते तभी तो उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो कॉल आया। जैसे कि मैंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, वैसा कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुआ मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन का पूरा लेगो। क्योंकि क्या है कि ये सब मैनेजमेंट का ही रहता है, सेटिंग रहती है उसमें। पुलिस स्टेशन भी वो रहता नहीं है, लेकिन वो पीछे महाराष्ट्र पुलिस, तिरंगा, ये बहुत सारे सीनियर ऑफिसर के फ़ोटो, एक माहौल रहता है पुलिस का टिपिकल जैसा माहौल, वैसा माहौल। और वो कांस्टेबल्स वो ऑफिसर बन के उनसे बात कर रहा था कि आपके अभी इंक्वायरी चालू हो गई है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके ऊपर बन रहा है। तो वो उन्होंने जल्दी से बिलीव कर दिया कि कोई पुलिस वाला ही सामने से बोल रहा है। तो वो बोले कि नहीं, मैं अभी पुलिस चौकी कोई तो जाता हूँ और उधर नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं रहेगा, हम बॉम्बे से बात कर रहे हैं और आपकी इंक्वायरी हो रही है। फिर वो बोले कि वो जैसे ही फ़ोन कट हो जाता है तब कोई सीबीआई ऑफिस है, पीछे वाला सीबीआई का लोगो, सीबीआई का ऑफिसर बोल रहा है ऐसा करके। फिर वो जज भी आ गया, प्रोसिक्यूटर भी आ गया। वो उनके बोले कि अभी आप पुलिस चौकी जाना नहीं, किधर जाना नहीं, ऐसे जगह ढूंढो कि जहाँ अकेले जाना है, आपको अकेले जाना है, उधर बैठना है, वीडियो जो है ऑन करना है, आपकी इंक्वायरी चालू है, हमारे ऑफिसर आएंगे जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इंक्वायरी आगे बढ़ती जाएगी आपको सब चीज़ें आंसर करना पड़ेगा। वो आदमी ऐसा घर में बैठा पूरा रात भर, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो गई, एक ऑर्डर भी निकाली गई कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। और फिर वो जैसे जैसे वो डरावने सब चीज़ें हो रही थी, उन्होंने पूरा अकाउंट बोल दिया कि मेरा तो कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा अकाउंट में 59 लाख रुपए है, दूसरा अकाउंट बैंक में है। वो बोले कि वो अकाउंट से पैसा हमें ट्रांसफ़र करिए, 2 घंटे के अंदर हम ये पूरा इंक्वायरी करेंगे, यदि आप इनोसेंट है तो आपका पैसा वापस करेंगे, और यदि वो मनी लॉन्ड्रिंग में है तो उसकी इंक्वायरी के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। पैसा जैसे ट्रांसफ़र किया, 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे इसके लिए मांगते हैं क्योंकि आपके बैंक में 3 घंटे तक पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उस अकाउंट में रहता है। कोई भी म्यूल अकाउंट उस साइबर क्रिमिनल यूज़ किया है, 3 घंटे तक पैसा रहता है। उसके बाद उस म्यूल अकाउंट से हज़ारों दूसरे जो म्यूल अकाउंट्स है, हमारे इंडिया में लाखों म्यूल अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं बैंक के अकाउंट से, कि वो अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है कि 59 लाख का ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 600, 500 अकाउंट में पैसा जाएगा, 100, 200, 500, 1000, 2000 ऐसा पैसा जाएगा। तो पुलिस को ढूंढने भी दिक्कत आती है और सिस्टम को आइडेंटिफाई करने भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए उन्होंने 3 घंटे का मौका टाइम मांगा, पैसा निकल गया। और बाद में और इसमें क्या किया था उन्होंने, पहला सोशल इंजीनियरिंग किया था। इनको डिजिटल अरेस्ट, जो इंडिया में कोई वर्ल्ड में ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कस्टम, कोई भी ईडी, कोई भी हो या नारकोटिक सेल का हो, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी की भी इंक्वायरी कभी भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी थी, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस को रिप्लाई दिया, डिजिटल अरेस्ट हो गए, पूरा इंफॉर्मेशन रिवील किया। अभी दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने पहला
कोई तो पुलिस स्टेशन चौकी जाना था, वो भी जाने के भी वो सोच रहा था। इन्होंने बोला उनको कुछ मालूम नहीं है, दूसरा भी चांस उन्होंने गया। और कोई भी साइबर क्रिमिनल आपको चीट करता है तो आपको कम से कम ध्यान में, मन में ये चीज़ आती है कि हमारी चीटिंग हो रही है। मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो ये कैनरा बैंक का अकाउंट की क्यों बात कर रहा है। और आधार कार्ड किसी ने आपका बोल दिया, आपका पैन कार्ड किसी ने बोल दिया, या आपका फोटो किसी ने दिखाया, तो इसका मतलब नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपकी है, आपके पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे उपलब्ध है। आपके फ़ोटो उपलब्ध है, आपके आधार कार्ड उपलब्ध है। उसका बहाना बना के कोई आपको आधार कार्ड दिखा के या उसका नंबर स्पेल करके आपको बोल रहा है कि ये आधार कार्ड आपका है, तो ये पुलिस वाले हैं, वो कंफर्म नहीं है। आधार कार्ड आपका किसी के पास भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड किसी के पास भी हो सकता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप किधर गए, क्या गए, वो सब किसी के भी पास। जैसे भी आपने इंटरनेट से कनेक्ट कोई भी डिवाइस है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपने किसी को सेंड की तो समझ लेना कि डेटा सेंटर में चली गई। यदि ये डेटा साइबर क्रिमिनल के हाथ में लग गया तो ये इंफॉर्मेशन का बहाना बना के कि वो इंफॉर्मेशन उनके पास है, आपके पैन कार्ड है, ये बना के ये लिए का आपको धोखा बोलते हैं कि ये लिए का बनावट, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, कस्टम से बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल के आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है रिवील की जाती है। बहुत बार ये सीजनल भी रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम का माहौल है तो आपको एसएमएस आएगा, आज 5 बजे के बाद आपकी लाइट कट हो जाएगी। आदमी सोचता है कि कल तो लड़की या लड़के की एग्ज़ाम है और रात भर पढ़ाई करने वाला है, अभी लाइट कट हो जाएगी तो उसको कैसा पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी में, और एसएमएस में भी आता है 1200 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये। लोगों को लगता है इतना पैसा पे करने के बाद फिर वो उसमें वो लिंक भी देते हैं। जैसे वो लिंक खोल देते हैं वो साइबर क्रिमिनल एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलता है कि आपका अकाउंट है, अकाउंट से खाली 500-1200 रुपये है, आप बोलते पैसा भरा है, प्यार प्यार से बातें करते, ठीक है तो आप आज के तारीख में खाली 500 रुपये भरिए, आपका लाइट चालू रहेगा और बाकी का पैसा है लिटिगेशन का है, जितना भी बचा रहेगा वो बाद में भर देना। तो आदमी 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की जैसे राजी हो जाता है तो जैसा अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। अभी बॉम्बे में एक घटना ऐसी हो गई थी, मलाड एरिया में, उनका कुछ तो 1200 का मैसेज आया, 7 लाख रुपए चले गए। अकाउंट कनेक्ट हो गया, लाइट का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये है कि कोई भी एसएमएस में अर्जेंट आता है, कोई टाइम लिमिट आता है, तो समझ लेना ये साइबर क्रिमिनल है। कोई बोल देगा कि आज ही लाइट आपकी कट हो जाएगी, आज ही ये सब कार्रवाई करनी है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके इंक्वायरी करनी है, समझ लेना ये सब साइबर क्रिमिनल का फ्रॉड है। किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट हमें एक्सेप्ट करनी है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी बनाए हैं इंडिविजुअल के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। कोई हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहा है, कोई हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, तो ये सब इंटरनेट रिलेटेड रहते हैं। डीपी अलग हो सकता है। किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है तो वो आदमी को आप फ़ोन करना चाहिए, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे डाली थी क्या। यदि वो ये बोलता है कि मैंने ही डाली थी, ईमेल कोई किसी का, आपको सस्पिशन हो गया, आपको मालूम है वो मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट डालेगा, मेरा तो उम्र अभी 60-70 साल का है और 22-23 साल की लड़की मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट डालेगी, सस्पिशन हो गया। तो मतलब है साइबर क्रिमिनल, क्योंकि वो क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी साइट। अभी किसी को घूमने का बहुत ही ये रहता है, वो साल में 2 बार घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आते हैं कि जैसे कि अभी कुंभ मेला है, बॉम्बे की बहुत सारी औरतों को कुंभ मेले में जाना था, तो साइबर क्रिमिनल ने एक एयर फ्लाइट बुकिंग की एक वेबसाइट डाल दी कि उसके ऊपर आप रजिस्टर करो, आपको फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि कुंभ मेले के लिए जाने के सबको जाना है। एक बार तो जाके उस माहौल में जितनी भी वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, सबको ही एनर्जी लेनी है। तो उन्होंने जैसा फ्लाइट बुक किया, फ्लाइट तो आई नहीं, पैसा दूसरी जगह पे चला गया। ऐसे कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या कोई गूगल का ऐप है, उसके रिव्यू देखना चाहिए
वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जिसने भी किया है पैसा, कोई भी ट्रेडिंग किया है, तो रिव्यू देखने के बाद पता लगता है कितने रिव्यूज़ है, कोई भी रिव्यू नहीं है, बोगस है। रिव्यूज़ है 40-50, लेकिन किसी ने तो बोला होगा नीचे कि ये बोगस है, एक ने भी बोल दिया ये निगेटिव है, तो वो वेबसाइट पे जाके ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप्स आते हैं, जैसे कि लोन, पुराने ज़माने में लोन का तो ख़त्म हो गया, अभी बहुत सारे ऐप्स गवर्नमेंट ने बोलने के बाद बहुत सारे ऐप्स डिसेबल किए गए हैं, रिमूव किए गए, डिलीट किए गए। लेकिन ये लोन ऐप के माध्यम से कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। तो बहुत सारे लोग शहरों में रहते थे, नौकरी चली गई, नौकरी मिलने के चांसेस थोड़े बहुत थे। ऐसे लोगों ने क्या किया, अभी तो नौकरी लगने वाली है, जैसा मेरा पैसा हाथ में आएगा, तो अभी मैं 5,000, 10,000, 15,000, उस टाइम ऐसा था 10,000, 15,000 पैसा भी सिटी में गांव से लोग नौकरी करने के लिए आए थे, उनके हाथ में पैसा नहीं था। गांव में तो हालत बहुत ही ख़राब रहती है, लेकिन सिटी में भी पैसा नहीं था। तो लोन ऐप के ज़माने में उन्होंने लोन ऐप जितने गूगल पे स्टोर पे आ गए, जिसने भी लोन लिया, लोन कितना 12,000 का, फिर 4 दिन के बाद फ़ोन शुरू हो जाते हैं, रीपेमेंट करो, रीपेमेंट, किसी ने रीपेमेंट भी कर दिया। इन बिटवीन जैसे गूगल प्ले स्टोर से उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, ऐसे ऐप दूसरे भी हो सकते हैं। उस ऐप के अंदर एक मालवेयर भी रहता है। जैसा गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड किया, तो मालवेयर क्या करता है कि आपका पूरा डेटा निकाल देता है। डेटा में क्या आता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं, और जैसे ही इन्होंने पैसा देना बंद किया, वैसा ही उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती है व्हाट्सएप पे, सबको मैसेज गया, ये आदमी गंदा है, ये शराबी है, ये बेवड़ा है, कुछ काम नहीं करता है, ड्रगिस्ट है, हमारा पैसा इसने चुकाया नहीं है, किसी की शादी टूटती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, किसी ने सुसाइड भी किया। 10-12 केसेस में लड़कों ने सुसाइड किया, बहुत सारे लोगों की शादी टूट गई, बहुत सारे लफड़े हो गए इससे। तो उसमें क्या है कि जैसा गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप आता है, उसका रिव्यू देखना चाहिए, उसके रिव्यूज़ में क्या है, कितने रिव्यूज़ है, ज़्यादा रिव्यू होने चाहिए। और रिव्यू में क्या बोलते हैं लोग, यदि वो रिव्यू एक भी गलत है तो उसके ऊपर हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, लोन नहीं लेना है। ये गूगल ऐप की एक समस्या है। अभी बैंक में क्या होता है कि बैंक में आपके बहुत सारे XML फाइल्स रहते हैं, बहुत सारा डेटा रहता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। वो सोशल मीडिया भी उसके ऊपर ओपन करते हैं, फेसबुक भी उसके ऊपर ओपन करते हैं, ईमेल भी ओपन करते हैं, पर्सनल ईमेल भी ओपन करते हैं। और यदि उसका ईमेल, अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट थी, जो भी वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रही है लोगों को दिख रही थी, ऐसे उन्होंने एक यूट्यूब पे एक चैनल खोल दिया था। और वो क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप भी, बैंक भी क्या करती है, किसी के ऊपर भरोसा रखती है, यार ये आपने को कुछ समझता नहीं टेक्नोलॉजी वगैरह, तुम आ जाओ, तुम्हारे 2 लड़के लोग लेके आ जाओ, लैपटॉप वगैरह जो भी है, इतना पैसा ले लो, 40-50 लाख का, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये ले लो, हमारी टेक्नोलॉजी व्यवस्थित सुपर फास्ट करो, जैसे कि हमें ज़्यादा कस्टमर मिलने चाहिए, जैसे कि लोगों में ज़्यादा भरोसा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो उन्होंने ट्रायल पूरी ओपन की थी, यूट्यूब पे ऊपर चल रही थी, किसी ने यूट्यूब चैनल ही हैक कर दिया। यूट्यूब चैनल हैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या गया, जिसने भी यूट्यूब चैनल ओपन किया था, जिसने भी उसको ईमेल प्रोवाइड किया था, यूट्यूब चैनल खोलने के टाइम फ़ोन नंबर दिया था, यदि उसका ईमेल वो डेडिकेटेड ईमेल होना चाहिए यूट्यूब चैनल के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट की वो सब सुनवाई सब पूरी दुनिया, तो उसने क्या, उसका ईमेल आईडी हैक हो गया, उसका जैसा ईमेल हैक हो गया, उसका यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया। सिंपल सी गलती किसकी, जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था यूट्यूब चैनल ओपन करने का, तो उसकी गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी नौबत आ गई कि वो पूरी लोग सोचने लगे, बोलने लगे कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अरे यूट्यूब सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। जैसे कि वो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट जितने भी आपके पास आते हैं, उसका भी रिव्यू लेना जरूरी है, उन्होंने कहाँ काम किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि क्या है आज की तारीख में हर के पास अपनी टेक्नोलॉजी है,
अभी पूरे इंडिया में आप देखें तो इतने इंजीनियर्स है, सब लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, उनका कोई ये नहीं है, भरोसा करना ही है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो हमें रिव्यू देखने के बाद ही उसके ऊपर हमें अमल करना है। अभी ये साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, हर एक एज सेक्शन को टारगेट करते हैं। बच्चे हैं, उनको कैसा टारगेट करना है, वो गेमिंग करते हैं। अभी हालत ऐसी बन गई है कि बच्चों को खोलने के लिए जगह नहीं है, यदि है भी तो घर वाले माँ बाप दोनों भी नौकरी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है उनको टाइम देने के लिए। तो क्या करते हैं, वो बिजी रहता है, हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, हमारा तो खाना बनाने का काम चल रहा है, मेरा ऑफिस का काम घर में आराम से चल रहा है, हमारा कोई टीवी मूवी देखना है, कोई प्रोग्राम देखना है, हम आराम से देख रहे हैं, बच्चे का कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो गेम खेल रहा है। ये गेम जैसे बच्चे खेलते हैं तो एडिक्शन हो जाती है। तो इन बिटवीन ये साइबर क्रिमिनल्स उसमें आते हैं। वो क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, तुमने ये जीत लिया, वो जीत लिया, तो बच्चा और भी एक्साइट हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि उसके जितने में माँ बाप ने पैसा दिया होता है वो उसमें लगा देता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो पैसा निकल जाता है। फिर ये साइबर क्रिमिनल्स उसको यहाँ वहाँ की धमकी दे के, बोल के, उसके माँ का फ़ोन, बाप का फ़ोन या कोई दूसरे जिस जिस फ़ोन में अकाउंट के डिटेल्स है वो निकाल के उस अकाउंट से पैसा निकालते हैं। इसका खेल और अकाउंट से पैसा भी दौड़ पूना में घटना हो गई थी। एक लड़का, डॉक्टर का लड़का, ऐसे इसी गेम में बिजी है, दोनों ही डॉक्टर है, पूरे बिजी, 5 लाख रुपए चले गए उनके। बच्चे ने उड़ा दिए पैसे। बच्चे ने तो उड़ा ही नहीं थे, साइबर क्रिमिनल्स ने किया था। ये सब समस्या होती है चिल्ड्रन के बारे में। अभी लड़कियां क्या देखती है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखती है। इंस्टाग्राम पे चली जाइए, फेसबुक पे चली जाइए, जितने भी उनके चैटिंग प्लेटफॉर्म ब्यूटी प्रोडक्ट, तो वो साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रील्स डालेंगे, उसमें ऊपर ऐसे ऐसे लिंक डालेंगे कि जैसे कि वो उसको वही देखना चाहिए। ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, इसका रिजल्ट ऐसा आया, उसका रिजल्ट ऐसा आया, गारमेंट ये वो, ऐसा करके ऐसे लिंक डालेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। वही उधर भी ये चेक करना है कि उसके रिव्यूज़ क्या है। अभी दूसरा, यूथ्स पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं है, तो उसको व्हाट्सएप के मैसेज आएगा, वर्क फ्रॉम होम, जॉब, HR हूँ, फलाना कंपनी का मैं HR हूँ, ऐसे उसको लिंक आएंगे। और ऐसे लिंक आते हैं कि लोगों को लगता है कि भरोसेमंद ही है, तो लगता है आपका सिलेक्शन होने वाला है, फॉर्म भरना पड़ेगा, इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। इस बहाने उसको 1100, 1200, 500, 100, 200 रुपये निकालते, यदि उसके अकाउंट में और भी पैसा है वो भी निकाल के निकल जाते हैं। ऐसे एक लेडी थी, लेडी टीचर, कर्नाटका में, कुछ तो मुझे नाम याद नहीं है। लेडी टीचर को एक मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर कि वर्क फ्रॉम होम की उनको जॉब ऑफर आई थी ऐसी कि एयर टिकट्स आपको खाली बेचना है, हम आपको लिंक देंगे, एयर टिकट आप बेचेंगे तो आपको कमीशन का पैसा मिलेगा। तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, 5,000, 10,000, ऐसा करते करते उनको 50-60 हज़ार पैसा मिला। तो उनको भरोसा हो गया कि ये कोई तो अच्छा मेरे को बिजनेस मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके हस्बैंड के अकाउंट पे जितने भी पैसे हैं वो सब निकाल दिए, उसमें लगा दिए। इन बिटवीन घर बेचा था कोई तो 35 लाख के लिए, वो भी पैसा लाया, उसमें लगा दिया। फिर इनका ये सब यार, वो शुरू में क्या आपके अकाउंट में पैसा आता है, बाद में क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स के अकाउंट होते हैं, वो बोलते हैं कि ये अकाउंट आपका ही है, इस अकाउंट में इतने आपके पैसे हैं। तो उनको लग रहा था कि 50 लाख हो गया, अभी 60 लाख हो गया। तो इनका देख के ये चर्चा होने लगी। टीचिंग अलग हो गया, टीचिंग का तो माहौल है ही नहीं था। सब बाकी भी लेडी टीचर है, जेंट्स टीचर है, उनको बोलते आप क्या करते हो, इतने बिजी हो और खुश भी बहुत रहती हो। तो उनको लग रहा था कि आपको 50 लाख मिलेगा, 60 लाख। तो आजू बाजू टीचरों को भी उन्होंने भी उनको पैसा दिया। ऐसा करते करते वो लेडी का तकरीबन 1,70 लाख चला गया। उसमें खुद का पैसा गया, हस्बैंड का पैसा चला गया, फिर वो आजू बाजू जिससे पैसे लिए थे वो भी चला गया, जो बेचा हुआ घर था उसका भी पैसा चला गया। मतलब ये है, ऐसे जो भी लुभावनी आपको लिंक आएगी, इसके ऊपर जितने ज़्यादा पैसा होता है तो इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोगों को फ़ोन आते हैं,
बीच में फ़ोन आते थे, फ़ोन आता है सादा का, और लैंग्वेज भी ऐसी रहती है कि जैसे कि शुरू में प्यार वाली, खाली इन्फॉर्मेटिव रहती है कि आपका एक पार्सल आया है। तो लोगों को लगता है कौन सा पार्सल, क्या हो गया क्या। तो जैसे दूसरा एक फ़ोन आता है कि आपको कलेक्ट करना है, इतनी फीस देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो सामने वाला जो है उसने पैसा नहीं दिया है। तो जैसे और भी उसके साथ बात करने लगते हैं, तो बाद में सीधा वीडियो कॉल पे आते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और वो वीडियो कॉल जैसे करते हैं तो फिर वही XYZ का आधार कार्ड उनके पास है, पैन कार्ड है, फ़ोटो है, उसके पूरे चेकबुक है, सब कुछ है इनके पास, जितने भी आपने इंटरनेट पे डाला है सब चीज़ें है, वो दिखाते हैं। ये आपका आधार कार्ड है, आपका ये पैन कार्ड है, बराबर है क्या। वो सामने से वो वीडियो कॉल पे पुलिस वाला रहता है, वो बोलता है कि इस पार्सल में ड्रग्स है, और ये ड्रग्स से आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, और इसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं। अभी आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया, आपने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो ये बोलते नहीं नहीं, मेरा हार्ड अर्न मनी है, ये मेरी एफडी है, ये है वो है, करते करते पूरा इंफॉर्मेशन उनको रिवील कर देते। आखिरी में ये बोलते कि पूरा पैसा आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हम तहकीकात करेंगे और बाद में आपको बोलेंगे कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, ड्रग्स बेचने के बाद पैसा आया है या नहीं है, या आपका कोई रियल इनकम है। तो ऐसा करते हैं और पैसा निकाल देते हैं। बोलने का मतलब है आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपका आधार कार्ड बोला जाएगा, आपका फ़ोटो दिखाया जाएगा, आपका चेकबुक दिखाए जाएंगे, और ये देखने के बाद आपको लगा बराबर है, ये तो मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, तो बिलीव करता है आदमी। तो ये साइबर क्रिमिनल्स की ट्रिक्स रहती है। ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस साइबर क्रिमिनल्स ने किए हैं, और एक लास्ट में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी, उम्र वाले लोग भी इधर बैठे हैं, तो उनके लिए भी उनकी एक मोडस ऑपरेंडी रहती है। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स के पास क्या रहता है कि उम्र रहती है 60-70 साल की उम्र रहती है, और हार्ड अर्न मनी उनके अकाउंट में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रहता ही है। तो उनको क्या लगता है, बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी में पूरी मेहनत करके इतना पैसा कमाने के बाद उनको ऐसा लगता है बैठे बैठे मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, इसके साथ कुछ किया जाए। क्योंकि बैंक में रखे तो कितना पैसा बढ़ता है, 6%, 7%, 8% से पैसा बढ़ता है। यदि कोई फिर ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, इनको ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक आता है, ट्रेडिंग का कुछ आता है, या कोई उनको बहुत सारी सर्विसेज चाहिए रहती घर में बैठे बैठे। क्योंकि अभी पूरे इंडिया में 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 30% सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। अकेलेपन के 3 सेक्शंस हैं। पहले आदमी ऐसे है कि वो फैमिली में रहते हैं, लेकिन फैमिली में कोई भी उनको ये नहीं करता है कि चलो ये सीनियर सिटीजन, उनको दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, उनको क्या पूछे और क्या करे, ऐसे ही पड़े, तो लोनली होते हो। दूसरे रहते हैं सोसाइटी में, उनके सोसाइटी में किसी से पहचान वगैरह कुछ रहती नहीं है, वो अकेले जाते हैं, किधर बैठते, इधर बैठते, उधर बैठते, कोई उनसे बात नहीं, कुछ नहीं, वो भी एक लोनली पर्सन है। तीसरे ऐसे है कि बहुत बड़े सीनियर पोस्ट पे रिटायर हो चुके होते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, छोटा मोटा पॉलिटिकल कार्य या सोशल वर्क किए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं। उनको क्या लगता है कि ये दुनिया बेकार की दुनिया है, ये फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, सब दुनिया ही उनको गलत लगती है। बच्चा क्यों डांस कर रहे हैं, ये क्यों स्टडी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे उस टाइप के आलोन रहते हैं। इनको हेल्थ इश्यू रहते हैं, इनके लिए भी उन्होंने मोडस ऑपरेंडी ढूंढ के निकाली है। इनके लिए क्या करते हैं कि कभी कभी उनको फ़ोन आता है व्हाट्सएप से, डीपी के ऊपर पुलिस वाले का फ़ोन रहता है, डीपी के ऊपर पुलिस वाले का फ़ोटो रहता है, और ये इस नॉर्थ साइड में हुआ था। उनको फ़ोन किया कि आपका लड़का जो है, हमने रेप केस में ग्रैंडसन, उसको रेप केस ने हमने अरेस्ट किया है, उसको अरेस्ट करना चालू है, यदि उसको छोड़ना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उनके पास 1 लाख रुपए था, उन्होंने तुरंत ही उसको भेज दिया। बाद में पता चला कि लड़का तो, ग्रैंडसन तो कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में है। तो क्या है कि कभी भी कोई भी सीनियर सिटीजन का फ़ोन आता है, ये व्हाट्सएप का कॉल
फेसबुक से आया हुआ कॉल या कोई चैटिंग प्लेटफॉर्म से आया हुआ जो कॉल रहता है वो इंटरनेट प्लस कॉल रहते हैं, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर कॉल रहता है, अपना सिंपल सा कॉल मोबाइल टू मोबाइल जो हम रेगुलरली कॉल करते हैं, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो जो रेगुलर उसका नंबर है उसके ऊपर आपने कॉल करना है, उसको पूछना है कि सही में तुमको पुलिस स्टेशन में लेके गया है क्या। तो कभी भी अपना जो रेगुलर फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर रहता है उस नंबर से जो सामने वाले से जिसको आपको बात करनी है उसका भी मोबाइल नंबर ढूंढ लो, उसका भी फ़ोन नंबर ढूंढ लो और उससे बात करिए। और पूरा कंफर्म करने के बाद जितने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये सीनियर सिटीज़न के लिए ये स्काइपी हैंडल करना आसान नहीं रहता है, वीडियो कॉल अटेंड करना आसान नहीं रहता। ऐसा एक नासिक में एक घटना हो गई थी। एक सीनियर सिटीज़न घर में बैठे थे, अकेले रहते थे, अच्छे खासे थे, उनके कॉल आया कि वही जो पहले मोडस ऑपरेंडी थी कि आपके मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड ये है क्या। वो बोले हो मेरा है। तो पहला उन्होंने कंफर्मेशन लिया कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वो सीनियर सिटीज़न का आधार कार्ड हो। तो इस आधार कार्ड में ये कैनरा बैंक, फिर कैनरा बैंक का नाम आया। कैनरा बैंक में अकाउंट खोल दिया है और उस अकाउंट में 20 लाख कैश भरी गई है और वो वाइट ब्लैक वाली कैश वाइट करने के लिए पैसा भरा गया है। तो तुरंत ही वो बोले कि मैंने तो पैसा भरा नहीं है और कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट भी नहीं, आधार कार्ड आपका है क्या, वो बराबर है। तो इसकी इंक्वायरी चालू हो गई। तुरंत जैसा ही फ़ोन कट हो जाता है तो दूसरा एक फ़ोन आया, तो बोले आप वीडियो कॉल करिए, इंक्वायरी करनी है, बहुत सारी इंक्वायरी करनी है। बोले मुझे कोई पता नहीं है। फिर और एक सेवा के उनका फ़ोन आता है, वो बोलता है कि आपको वो उनको स्काइपी के बारे में URL लिंक भेजता है, वो स्काइपी एक्टिवेट हो जाती है। तुरंत उनको बेंगलोर साइबर पुलिस का एक लोगो पुलिस वाला बैठा है और वो बोल रहा है कि नरेश अग्रवाल करके एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है और वो आदमी ने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। इसमें से एक फैमिली ने सुसाइड किया है और उसके रिलेटिव पुलिस चौकी आए और वो बोलते कि नरेश अग्रवाल से पैसा हमारा लेना चाहिए और वो नरेश अग्रवाल के गैंग में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से आप भी हैं। तो पहला स्टोरी शुरू किया था 20 लाख कैश आपने भरी है वो वाइट करने के लिए, और ऐसे लपड़े आप लोग करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो और लोगों को चीटिंग करते हो। इसमें से एक ने सुसाइड किया। फिर बाद में बोले कि मेरा तो नरेश अग्रवाल को मैं पहचानता नहीं, लेकिन आप पहचानते नहीं, लेकिन आपका आधार कार्ड उसके पास है। उसको जब हमें अरेस्ट किया तो उसका आपका आधार कार्ड उसके हाथ से मिला, आपके फ़ोटो मिले, तो आप कैसे डिनाई कर सकते। तो बाद में उनको फ़ोन आया बॉम्बे क्राइम ब्रांच से, बॉम्बे क्राइम ब्रांच वाला कि ये बहुत बड़ा इंटर स्टेट गैंग है और हम भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका भी वीडियो कॉल। फिर तीसरा आ गया ईडी से कॉल ऐसा आया, नोटिस आ गई स्काइपी के ऊपर, उनका नाम, एज, नासिक का एड्रेस सब आ गया। तो आपकी इंक्वायरी चालू की गई है और आपको ये बहुत सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे। ये डिटेल्स निकालते निकालते 6 करोड़ 90 लाख उन्होंने इंक्वायरी के लिए डिपॉजिट किए। इन बिटवीन उन्होंने बोला कि कल मुझे मेडिकल के लिए जाना है, बहुत सारी मुझे समस्या रहती है, तो बोले आपको हम 1 लाख रुपए देते वापस। तो फिर ये बोले कि नहीं 1 लाख से कैसा हो जाएगा, और एक चाहिए, और 1 लाख दिया, ऐसे 2 लाख दिए और 6 करोड़ 90 लाख उनके निकाल दिए गए। तो बोलने का मतलब है ऐसे कोई भी साइबर क्रिमिनल्स आपको आपके आधार कार्ड बोल के, आपका फ़ोटो दिखा के कोई भी आपको स्काइपी पर कॉल करता है तो ऐसे कॉल एंटरटेन करना नहीं है। और कभी भी ऐसे कोई समस्या साइबर क्रिमिनल्स ने आपके ज़िंदगी में खड़ी की है स्काइपी के कॉल पे, वीडियो कॉल के ऊपर, तो पहली एक बात करना, कुछ भी नहीं किया तो चलेगा, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको बोलना, अकेले में इनसे बात नहीं करना, वीडियो कॉल के ऊपर बोलना, उनको फ़ोन कट करना। कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके घर में आके आपको कुछ भी करने वाला नहीं है। आज तक कोई भी साइबर क्रिमिनल आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया, आपके उसको वीडियो कॉल पे आंसर नहीं किया,
आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई भी साइबर, पूरे वर्ल्ड में कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके घर पे आया नहीं है। पहली बात ये करना है, आपके जितने भी फैमिली मेंबर से बोलना है कि ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा ऐसा हो गया था और मुझे ये बोल रहे कि पैसा देने के लिए। तो कोई एक भी आदमी, आपके फैमिली मेंबर, जितने भी आपके साथ लोग रहेंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी और वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे। चलो पुलिस चौकी जाते, फलाना मेरा एक पहचान वाला है, फलाना वाला वो पहचान वाला है, वो रिटायर्ड हो चुका है लेकिन उसके पास इसका कोई तो हल होगा। तो ऐसा पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ बात करना ऐसी समस्या में बहुत ज़रूरी है। और कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके घर में आके आपको कभी भी चीट नहीं कर सकता है, आपके घर में कभी आएगा भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सअप, बहुत सारे एजड पर्सन के व्हाट्सअप एक्टिव नहीं रहते हैं, वो खाली मोबाइल से कॉल करते हैं। साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, व्हाट्सअप एक्टिवेट करते हैं उनके डिवाइस में, उनके मोबाइल हैंडसेट में। किनका नंबर डाल के, ये एज ओल्ड पर्सन है और किसी का भी मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP आता है। जैसे आप व्हाट्सअप एक्टिवेट करते हैं OTP आता है। अभी OTP का बहुत सारा बदनामी हो गया, गूगल कोड बोलने लगे, क्योंकि जिसने भी OTP का शब्द लाया था, क्योंकि गूगल जो मशीनरी है उनको बदनामी हो गई, लोग OTP शेयर करना बंद कर दिए और OTP देना ही बंद कर दिए और उनकी गूगल के भी डिफेमेशन हो गई। उन्होंने गूगल कोड लाया। वो क्या करते हैं, उस ओल्ड पर्सन को फ़ोन करते हैं, आपका एक SMS आया होगा, उसमें गूगल कोड आया होगा, तो ये मेरा है, गलती से आपको गया है तो आप मुझे दीजिए। वो जैसे वो गूगल कोड इसके व्हाट्सअप एक्टिवेट करने के लिए उसने डाल दिया, तो वो ओल्ड पर्सन का और किसी और का व्हाट्सअप इनके फ़ोन पे ऊपर चालू रहता है। और ये व्हाट्सअप चालू हो गया तो सामने वालों को क्या लगता है कि वो हमारे पुराने दादा है, उन्होंने शायद व्हाट्सअप चालू किया होगा, और वहाँ से वो मैसेज छोड़ना शुरू कर देता है। मैसेज ऐसा आएगा कि मैं फंसा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हूँ, मैं किधर गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे पैसा चाहिए, ऐसी डिमांड हो सकती है। तो व्हाट्सअप किसी का भी हैक नहीं होता है। व्हाट्सअप एक्टिवेट करने के लिए आपको गूगल कोड की ज़रूरत रहती है, OTP की ज़रूरत रहती है। तो कोई भी गूगल कोड, अभी बीच में सुप्रिया सुले अपने MP है ना, उनका भी व्हाट्सअप हैक है, पूरा पार्लियामेंट में हंगामा, व्हाट्सअप हैक हो गया, हैक। ऐसा नहीं हुआ था। उनकी जो फ्रेंड थी नज़दीक वाली, उनका पहले उन्होंने गूगल कोड किसी साइबर क्रिमिनल को दिया। जैसा ही हो गया तो उस फ्रेंड का उनके फ़ोन आने लगे, तो उन्होंने बोले गूगल कोड चाहिए। तो गूगल कोड टर्मिनोलॉजी नहीं थी, लोगों को लगा आज तक OTP शेयर नहीं करना, इतना हमें मालूम है, गूगल कोड के बारे में कुछ कोई नहीं बोल रहा है, तो गूगल कोड किसी को भी दिया तो कुछ होता नहीं है। लेकिन OTP का नाम है, उन्होंने गूगल कोड चेंज किया था अभी गूगल वालों ने। तो जैसे ही उन्होंने दिया तो पूरे 3-4 लोगों के व्हाट्सअप हैक, सुप्रिया सुले का व्हाट्सअप हैक हो गया, सबके व्हाट्सअप हैक, पूरे पार्लियामेंट हंगामा हो गया। तो उसका इतना ही था कि आपके जितने भी लंबे लंबे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग रहते, किसी का भी व्हाट्सअप हैक किया और उस व्हाट्सअप से आपको SMS आया या आपको फ़ोन आया, तो आपने वो व्हाट्सअप को नहीं रिप्लाई करना है। जिस फ़ोन से आपको फ़ोन आ रहा है उसको लैंडलाइन से फ़ोन करो, आपके मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल नंबर के ऊपर फ़ोन करो, आपने मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया था क्या। क्योंकि क्या है, व्हाट्सअप इंटरनेट बेस है, फेसबुक कॉल इंटरनेट बेस है, ये सब इंटरनेट बेस है, मैनिपुलेशन हो सकते हैं। अपना जो रेगुलर है उसको टेलीकॉम मिनिस्ट्री मैनेज करती है, उसमें ये नहीं होता है। तो इससे कॉल करिए, कंफर्म करिए, तभी गूगल कोड देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली, इन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, तीनों एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पे लाई है। उसमें RBI है, आप भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है। कई कोऑपरेटिव बैंक रिस्पॉन्स भी, हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कोऑपरेटिव बैंक रिस्पॉन्स उनके अकाउंट, म्यूल अकाउंट खोल दिए बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में, वहाँ से पैसा लैंड हो चुका है। हमने तहकीकात में हमें ऐसा मालूम हो गया,
राउंड अबाउट 60 करोड़ पैसा है कोऑपरेटिव बैंक में, जो म्यूल अकाउंट में पड़ा है। वो बैंक हमें रिप्लाई नहीं दे रही है। आगे जाके कुछ तो कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर, क्योंकि वो म्यूल अकाउंट है, किसी ने किसी के नाम के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक या स्मॉल सेविंग बैंक में खाता पड़ा है पैसा। तो ये सब बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और होम मिनिस्ट्री, इन्होंने तीनों ने मिला के एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उन्होंने क्या किया है, एक पोर्टल निकाला है, cybercrime.gov.in। ये पोर्टल है और हेल्पलाइन है 1930। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमने भी महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक हमारा प्रोजेक्ट ओपन किया है। उसमें हमने जैसे 1930 है वैसा 14407 ये हेल्पलाइन है। आप 1930 पे कॉल करें तो वो 14407 पे लैंड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा नंबर क्या है, कौन सा आपको अच्छा लगे उस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। वो हेल्पलाइन दिया। हमने एक पोर्टल खोल दिया है mhcyber.gov.in। ये पोर्टल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि जैसे कि आप कॉल करेंगे, हमारे पास 6 वर्टिकल्स है। वर्टिकल्स में 6 विभाग है। पहला है कमांड सेंटर। कमांड सेंटर में जैसे ही आपने कॉल किया 14407 या 1930 इसके ऊपर जैसे कॉल किया, वो कॉल रिसीव हो जाएगा, आपकी कंप्लेंट ली जाएगी। तुरंत ही आपको एक एसएमएस जाता है, सिस्टम से जाता है, कोई राइट नहीं करता है आपकी कंप्लेंट होने के बाद। तो एसएमएस में लिखा जाता है कि आपकी कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और आपकी कंप्लेंट इस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र की गई है। लेकिन उस दौरान एक ईमेल सेंड किया जाता है कि हम उस सिस्टम से कल्प्रिट का अकाउंट नंबर हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वो कल्प्रिट का अकाउंट उधर जो नोडल ऑफिसर रहता है, बहुत बार बैंकों ने नोडल ऑफिसर रखा नहीं है। यदि है वो ईमेल देखता नहीं है, किस बैंक से आया, I4C से आया या साइबर डिपार्टमेंट से आया, वो देखता नहीं है। वो तुरंत ही वो अकाउंट में जो पैसा साइबर क्रिमिनल्स ने चुरा लिया है वो लीन नहीं करता है, वो अकाउंट फ्रीज नहीं करता है। 3 घंटे के बाद, वो 3 घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई तो पैसा अगले अकाउंट में चला जाता है, वो अकाउंट का पैसा पूरा निकल जाता है। फिर दूसरे अकाउंट ढूंढना पड़ता है, और इस सिस्टम ढूंढते ढूंढते 40-50 अकाउंट मिल जाते हैं। तो उसमें ये बहुत सारे म्यूल अकाउंट, कोई उसका ओनर रहेगा महाराष्ट्र का, कोई कर्नाटका का रहेगा, कोई बंगाल का रहेगा, हरियाणा का रहेगा, राजस्थान का रहेगा, बहुत सारा। रुपए गए 10,000 गए 10 लोगों के हाथ में, एक है आदमी हरियाणा में, तो 100 रुपये के लिए इतनी बहुत सारी पुलिस की मशीनरी यूज़ करना आज के तारीख में पुलिस के लिए बहुत सारी मशक्क़त और ये उसके लिए बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो ये है कि ये सिस्टम क्या करती है, ईमेल भेजती है। तो बैंकों ने नोडल ऑफिसर रखना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसके ईमेल चेक करना है और अकाउंट लीन मार्क करना है, फ्रीज करना है। ये सिस्टम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, इन्होंने ये फैसिलिटी आपको दी है, इसका आपने यूज़ करना है। दूसरा है कि जैसे आपने कंप्लेंट रजिस्टर की रहती है, आपको एक एसएमएस आएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा गया है, डेबिट हो गया। आपको पता है कि मैंने तो ट्रांजैक्शन किया नहीं था, यदि किया भी है लेकिन मुझे सस्पिशन है वो ट्रांजैक्शन लीगल नहीं है, किसी ने मेरे को छेड़खानी की है, मेरे को किसी ने फंसाया है। तुरंत ही आपने पुलिस चौकी नहीं जाना है, पुलिस चौकी बिल्कुल नहीं जाना है। पहला 1930 के ऊपर कॉल करना है, पहला 14407 के ऊपर कॉल करना है। यदि दोनों भी नहीं मिल रहे तो cybercrime.gov.in पोर्टल के ऊपर आपकी कंप्लेंट दर्ज करनी है, नहीं तो mhcyber.gov.in के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करनी है। जैसे आप दर्ज करोगे तुरंत ही एक ईमेल शूट हो जाएगा, कल्प्रिट का अकाउंट जो है एक तो लीन हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा। यदि आप 3 घंटे के बाद चले जाएंगे, आपको एसएमएस आया 2 बजे और आप दूसरे दिन 2 बजे निकल गए या सुबह 10 बजे निकल गए या 5 बजे के बाद वो पुलिस चौकी सब करने के बाद, तो अकाउंट लेयर बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसा निकाला जाता है। अभी साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, ये म्यूल अकाउंट
वो चेकबुक रखते हैं, सीधे बैंक में चले जाते हैं। 3 घंटे के अंदर या 3 घंटे के बाद वो अकाउंट, उनको मालूम है इस अकाउंट में पैसा आने वाला है। और हमारी तहकीकात में ऐसा हमें मालूम हो गया है कि एक म्यूल अकाउंट में एक दिन का 1 करोड़ आना चाहिए। ऐसा है, साइबर क्रिमिनल ने ये म्यूल अकाउंट ऑपरेटर को टारगेट दिया है। हमें महाराष्ट्र, हमारे कॉल सेंटर में हर दिन 5,000 कॉल आते हैं। हर दिन महाराष्ट्र के जो इंडिविजुअल्स है, इनके अकाउंट से 4 या 5 करोड़ जाते हैं कुल मिला के। ऐसी कंप्लेंट्स हो रही है। तो बोलने का मतलब इतना है, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। आपने नोडल ऑफिसर्स रखने हैं। जितने भी म्यूल अकाउंट्स है, आपको पता होता है आपका KYC अपडेशन होना जरूरी है। यदि आपने KYC में फाइंड आउट किया कि इस अकाउंट में इतना पैसा क्यों, इसकी तो आमदनी 5,000 भी नहीं है, अभी पिछले महीने 15 दिन पहले इसने अकाउंट खोल दिया, तुरंत ही इसके अकाउंट के ऊपर 1 करोड़ कैसे आ गया? तो तुरंत ही बैंकों ने प्रोएक्टिवली वो अकाउंट फ्रीज करना जरूरी है। इंक्वायरी के बाद छोड़ दीजिए, पैसे आगे वाले छोड़ दीजिए, तब तक ये पैसा बचा। क्योंकि क्या है, साइबर क्रिमिनल सीधा तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं ले सकता है, घर में पैसा नहीं निकल सकता है, तो पहला अकाउंट में ही जाएगा। कौन से भी अकाउंट में जाएगा? आप म्यूल अकाउंट के लिए RBI ने बहुत सारी गाइडलाइन दी है, वो फॉलो करनी जरूरी है। करंट अकाउंट्स, पुणे में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे करंट अकाउंट निकल गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में करंट अकाउंट बहुत सारे निकल गए। करंट अकाउंट मीन्स, करंट अकाउंट क्या होता है? उसमें वॉल्यूम में पैसा आता है, लेकिन उसकी वो जो करंट अकाउंट खोलने के टाइम जो भी उसके ये है लिमिट्स है, वो कभी देखता नहीं। KYC किसी ने देखी नहीं है, उसने कितनी रिटर्न्स फाइल की है, उसका रिटर्न इनकम कितना है, और करंट अकाउंट उसको किसके लिए चाहिए, कौन से बिजनेस के लिए चाहिए, कोई चेक नहीं कर रहा है। साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं? फटाफट जाते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं, कोई ड्राइवर को पकड़ते हैं, कोई होम मेकर को पकड़ते हैं, छोटे मोटे 5,000, 10,000, 15,000 कमाने वाले लोगों को पकड़ते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम करंट अकाउंट खोल के मुझे दे दो, तुमको महीने का 10,000 रुपये मैं दूंगा। और ये म्यूल अकाउंट ऑपरेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। जैसे ही करंट अकाउंट के ऊपर या म्यूल अकाउंट जिसके ऊपर, जिसकी आमदनी 5,000 के ऊपर नहीं है, 10,000 के ऊपर नहीं, उस आदमी के अकाउंट के ऊपर 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, क्योंकि पैसा भी जाता आता है, तो वो अकाउंट आपने तुरंत ही फ्रीज किया, बंद किया, तो इंक्वायरी के बाद उसको छोड़ दीजिए। तो आपकी तरफ से ये भी सहयोग चाहिए। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये बोलना चाहिए, जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये अपने ऑफिस का जो भी कंप्यूटर है जो बैंक में लगा हुआ है उसके ऊपर ओपन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारा एक लैपटॉप खोल दो, निकाल दो, चाहिए तो मोबाइल के ऊपर भी तुम ओपन कर सकते हो, हमारे कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं करना है। क्योंकि क्या है, आपने फायरवॉल रखी है, सब कुछ करके रखा है, सब वल्नरेबिलिटी अपने चेक करी है, सब है। लेकिन यदि ये इंडिविजुअल जो भी क्लार्क है, जो भी नया आया हुआ है, उसने वो ईमेल आईडी ओपन किया, सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया, यदि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन वायरस आ गया तो हो सकता है कि आपकी पूरी सिस्टम बैंकिंग की करप्ट हो सकती है, पूरा डेटा आपका वहाँ चुराया जा सकता है। कि जैसे कि अभी ये बेल्लारी कोई गांव है कर्नाटक में, 2.41 करोड़ पैसा गया है, अभी 10-15 दिन पहले हो गए। XML फाइल जो अभी रहती है, जो कस्टमर का डेटा रहता है, वो मैनिपुलेट किया, वो कमांड दिया, पैसा 2 करोड़ 25 अकाउंट में पैसा चला गया। तो क्यों हो गया कि जो XML जो फाइल आपने, किसी ने तो ईमेल उसके ऊपर ये किया होगा, कोई तो मालवेयर आया होगा। और मालवेयर आने के लिए एक तो आपका फ़ोन का SMS के थ्रू लिंक आती है, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक आती है, गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप आता है उसमें मालवेयर रहता है, ईमेल से आ सकती है, जहाँ से भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो वहाँ से मालवेयर आ सकता है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि इंडिविजुअल का फ़ोन उसके काम के लिए उसने यूज़ करना है,
ऑफिस के ईमेल आईडी, ऑफिस के जितने भी ट्रांजैक्शन है वही उसमें होना चाहिए, और आपकी फायरवॉल और सिक्योरिटी चेक्स और जितने भी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में बग्स रखे जाते हैं। बग इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि हर एक कस्टमर का डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए हम बग रखते हैं। लेकिन उसमें भी हमने उसका भी चेकिंग करना, और जो भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जितने भी है वो सब हमने उसमें रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपका पैसा, आपका भी भरोसा बढ़ना चाहिए। यदि आपकी बैंक कोई फ्रॉड में चली गई, आपका पैसा चला गया, 1 रुपये भी चला गया, मार्केट में ऐसे लोग हैं 2 रुपये के लिए बैंक छोड़ने वाले लोग हैं। किसी को लोन नहीं मिला, किसका पैसा निकल गया, भरोसा कितनी भी अपनी बैंक बड़ी हो, कितने भी कुछ भी हो, यदि एक गलती हो गई और किसी का पैसा चला गया, वो मैनेजमेंट को बहुत परेशानी है, पूरे कस्टमर को फिर वो कॉन्फिडेंस में लेना और अपनी बैंक चलाना। तो ये सब समस्या देखते हुए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ध्यान रखना है। किसी को गूगल कोड नहीं शेयर करना है। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोई भी पर्सनल जो ये रहते हैं, सो भी किसी की शादी हो गई तो उनके फोटो अलग रहते हैं, वो फोटो सोशल मीडिया के ऊपर आपने नहीं रखना है। कभी कभी लड़के लड़कियां कॉलेज में जाते हैं, फ्रेंडशिप बन जाती है, कोई टूर के जाते हैं, कोई सोशल फंक्शन रहता है, कोई गैदरिंग रहता है, तभी फ़ोटो खींचे जाते हैं। ऐसे फ़ोटो सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज जो आपका फ्रेंड है कल जाके दुश्मन हो सकता है। एक किस्सा है न्यू बॉम्बे पनवेल का। एक लड़की और लड़के एक साथ पढ़ते थे, 6-7 स्टैंडर्ड से उनकी पढ़ाई साथ में शुरू थी। धीरे धीरे उनमें ज़्यादा उठना बैठना शुरू हो गया, फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। उस लड़की ने जितने भी फ़ोटो पोस्ट किए फेसबुक के ऊपर, किसके, ये जो लड़के के पोस्ट पर, आगे जाके क्या हो गया, घर वालों को पता हो गया कि ये लड़की और लड़का का कुछ तो लफड़ा है। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में, चौकी में कंप्लेंट किया। वो लड़के को अंदर डाल दिया, 6 महीने के लिए अंदर गया। फिर जैसे वो छूट गया, इधर उधर भागते भागते इन बिटवीन लड़की का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। उसको बॉम्बे में नौकरी मिलना लड़कियों को, और किसी को भी लड़की नौकरी मिलना 20-25 हज़ार की किसी को भी ये नहीं है, किसी को भी नौकरी मिलती है। उसको नौकरी लग गई और ये तो ड्राइवर ही बनते रह गया। जैसे वो छूट गया फिर वो आ गया, लड़की को फ़ोन करने लगा, लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है। बाद में उसने क्या किया, उसके कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट से फ़ोन किया कि उसको बोलो कि मेरे से एक उसके फ़ोटो है मेरे पास, जब हम एक साथ रहते थे फ़ोटो है, ये फ़ोटो दिखाओ और बोलो कि मेरे से बात करो। जैसे उसने फ़ोटो दिखा दिया तो लड़के ने उसने बात करना शुरू कर दिया। फिर लड़के ने एक दिन सोचा कि इस लड़के को एक बार निपटा देते हैं कि यार हमारा आगे से नहीं बनेगा, जो भी है तुम तुम्हारा ज़िंदगी जी लो, मेरी ज़िंदगी मैं जिंदगी। एक दिन उस लड़के ने बुलाया रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका मर्डर कर दिया बिना सोचे। क्या हो गया था, ये फोटो की वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा था वो लड़के को, इसके लिए तो उसको अकेले मिलने के लिए गई, और किसी को साथ लेने का क्यों नहीं हो गया, क्योंकि लड़की ने क्या किया था, जो फोटो है उसके जितने भी इंटीमेसी उनके फोटो है, जैसे कि हो सकते हैं कभी कभी कई लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उनके फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, कोई शादी के फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है, डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक मीन्स क्या है, डीप फेक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और डेटा स्वैपिंग है। आपके जैसे ही फ़ोटो है, जैसे वीडियो, उसके लिए कंटेंट ज़्यादा चाहिए यूट्यूब के ऊपर। किसके पास भी आपका डीप फेक बनाना है, कम से कम आपका जीबी में, टीवी में डेटा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर बन सकता है, कोई एक्ट्रेस का बन सकता है, क्योंकि आम आदमी का डीप फेक बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी, इसके ऊपर भी डीप फेक चलाया जा सकता है, उसका फ़ोटो बनाया जा सकता है। तो कंटेंट जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ऊपर या गूगल पे, कौन से भी प्लेटफॉर्म पे अब जब हमारे फ़ोटो अपलोड करते हैं, खास करके लड़कियों ने ध्यान में रखना है। क्योंकि क्या, लड़कों का क्या है कि आज हमारे कितनी भी हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन लड़कों को ज़्यादा आज़ादी है, लड़की को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। लड़के ने दारू पिया, लफड़ा किया, कुछ किया तो ठीक है, वो सुधर जाएगा,
लड़की ने किया तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो लड़की लोगों ने ज़्यादा ध्यान में रखना है और आपके लड़के लोगों को भी समझाना है। फ़ोटो खींचो, फ्रेंडशिप करो, इधर जाओ उधर जाओ, मना मत करो, लेकिन सोशल मीडिया से सावधान रहो। वो फ़ोटो उधर अपलोड मत करो जिसका डीप फेक बन सकता है, आपको ब्लैकमेल कर दिया जा सकता है। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। तो बहुत सारी समस्या आपके मन में साइबर क्राइम के बारे में होती है, उसका भी हल शायद इससे मिल जाएगा। और साइबर क्रिमिनल से बचने का एक ही तरीका है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, प्रोफाइल पे बिलीव नहीं करना है, कंटेंट अपलोड नहीं करना है, अपने जितने भी इंटीमेट सीन है गूगल कोड किसी को शेयर नहीं करना है, अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स है, पिन्स है, यूपीआई जो रहता है क्यूआर कोड है, उसके भी पिन रहते हैं। क्यूआर कोड के ऊपर जब ट्रांसफ़र करते पैसा, तो जैसे आप लॉगिन करोगे उसका नाम आता है, यदि वो नाम गलत है आगे मत जाइए। तो ये सब सिस्टम का यूज़ करें तो आपको साइबर क्रिमिनल टच भी नहीं कर सकते। और यदि किसी ने टच भी किया, किसी ने पैसा भी लुटा दिया, तो सीधा 1930-144007 के ऊपर जाके तुरंत ही कंप्लेंट फाइल करना है, कॉल करके। पुलिस चौकी नहीं जाना है। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो पुलिस चौकी जाइए, आरोपी को पकड़ना है और कुछ करना है। लेकिन 3 घंटे के बाद आपने कंप्लेंट करने के बाद पैसा मिलने का चांसेस कम है। एक का 40 करोड़ गया था, उन्होंने तुरंत ही कंप्लेंट किया 1930 के ऊपर, 36 करोड़ बच गया उनका। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ये है अनुभव है, तुरंत ही पैसे मिल गए लोगों के, 6 के 6 करोड़, 5 के 5 करोड़ पैसे मिल गए 3 घंटे के अंदर कंप्लेंट करने के बाद। पुलिस चौकी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल ध्यान में रखना है, mhcybercrime.gov.in और mhcyber.gov.in। थँक यू, नमस्ते। हां, आपल्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशननी डिजिटल इंटेलिजन्स युनिट तयार केलेलं आहे। ह्या डिजिटल इंटेलिजन्स युनिटमध्ये त्यांनी चक्षू नावाचं एक पोर्टल काढलेलं आहे। चक्षू पोर्टलमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला वाटलं की हा इंटरनॅशनल कॉल बोगस आहे, तर संचार साथी नावाचं पोर्टल आहे DOTचं, तर त्याच्यावरती चक्षू नावाचं पोर्टलवरती आपण जायचं आहे, तिथं ते पेस्ट करायचं आहे, नंबर टाकायचा आहे। आपल्याला वाटलं की ह्या व्हॉट्सअप कॉलवरून मला फोन आलेला आहे, किंवा ह्या फोनवरून मला हा फोन आलेला आहे, किंवा या SMS वरून मला जो मला मेसेज आलेला आहे, एखादी लिंक आलेली आहे, एखादी लॉटरी लागलेल्याचा मला मेसेज आला आहे, ते सगळं पोर्टलवर जर तुम्ही टाकलं तर DOTची एक सॉफ्टवेअर आहे, ते ॲनालाइज करतं आणि ते कॉल, तो मोबाईल नंबर ब्लॉक करतं। आत्तापर्यंत DOTनी 26 लाख मोबाईल फोन डिॲक्टिवेट करून टाकलेले आहेत। त्याच्यामुळे सरकारने भरपूर प्रयत्न केलेस, जनतेने याचा फायदा घ्यायचा आहे। म्हणजे समजा मला कॉल आला, मला माहिती आहे ट्रॅफिक ब्रांचचा फोन येतो कि आपके व्हीकल के ऊपर बहुत सारे दंड वसूल करना बाकी है, नहीं तो आपने दंड नहीं दिया तो आपका वाहन जब्त किया जाएगा। ऐसा जब मैसेज आएगा तो समझ लेना, अब तुरंत एक दंड भरना है, समझ लेना है कि साइबर क्रिमिनल। चक्षु के ऊपर डाल दो, वो लिंक ही ख़त्म हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि हमारे इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल कॉल आते हैं, जितने भी लिंक्स ऑपरेटेड है, जितने भी इंटरनेट एक्टिविटी है, जितने भी प्ले स्टोर पे ऐप्स आए हैं, सबका कंट्रोल DOT के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे हैं और कोई भी आके कोई भी कॉल कर रहा है, गूगल पे के ऊपर ऐप चला रहा है, ऐसा नहीं है। सबका कंट्रोल DOT के हाथ में है, नहीं तो हम कब के बर्बाद हो चुके होते, सबका पैसा गया होता। ऐसा नहीं है। सर, अपन जो म्यूल अकाउंट के बारे में आपने जो बताया, तो कैसा उसको डिटेक्ट करें? मतलब बैंकिंग CBS से पता चलेगा म्यूल अकाउंट अपने कौन से ब्रांच में कितने हैं, और कैसा उसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए म्यूल अकाउंट? म्यूल अकाउंट के बारे में इतना ही है कि पहले उसके KYC चेक करनी जरूरी है। पहला आपको सस्पिशन आना चाहिए
क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अकाउंट बैंक का भी ये रहता है कि हमारे बैंक के कस्टमर ज़्यादा होने चाहिए, सब अकाउंट्स भी ज़्यादा होने चाहिए, वो तो आपका एक है, बराबर है, लेकिन केवाईसी उसकी वैलिडेट करना ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, बैठे बैठे केवाईसी हो जाती है, उसका फ़ोटो वेरीफाई नहीं हो जाता है, उसका एड्रेस वेरीफाई नहीं किया जाता है, उसका मोबाइल नंबर जो भी उसने दिया है अकाउंट ओपन करने के टाइम वो कभी एक्टिवेट भी नहीं होता है, उसका ईमेल आईडी वो चेक नहीं हो जाता है। उसको एक पहला ये तरीका है, हर दिन उसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। यदि हमें लगा कल ही अकाउंट खोल दिया और 4 दिन के अंदर उसके अकाउंट के ऊपर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आया, और जब ये अकाउंट खोलता है तब आपने उसमें लिखा रहता है कि आपकी इनकम कितनी है और उसका सोर्स क्या है और बाकी का आपका अकाउंट क्या है, तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है कि जैसे कि वो मूल अकाउंट का पता होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आरबीआई ने उसके ऊपर गाइडलाइन भी दीजिए है, आगे जाके उसके ऊपर कानून भी बन सकता है। बैंक में कानून के चक्कर में आ सकती है कोई भी बैंक, क्योंकि I4C पार्लियामेंट में गई है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास गई है कि ये सब म्यूल अकाउंट, ये म्यूल सिम कार्ड्स, ये म्यूल ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा 2 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, म्यूल अकाउंट्स और म्यूल सिम कार्ड। म्यूल में बाकी कुछ नहीं है, किसी के और के नाम से अकाउंट खोला जाता है और वो चलाता कोई और है, इसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। और तरीका जानने का ये कि केवाईसी उसकी बराबर है कि नहीं चेक करना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि उसके अकाउंट के ऊपर पैसा क्यों आ रहा है। आज अकाउंट खोल दिया और पैसा आ गया और ज़्यादा पैसा आ रहा है, और वो अकाउंट में यदि पैसा आ गया तो तुरंत ही आपकी ओर से आप फ्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो राइट है। आफ्टर इंक्वायरी आप छोड़ भी सकते हो, आप पुलिस के पास भी लेके आ सकते हो कि हमारे अकाउंट में, बैंक में ये अकाउंट आ गया, उसके अकाउंट के ऊपर 25 करोड़ आ गए, हमें सस्पिशन लग रहा है। और पहला आपने नोडल रखना जरूरी है, जो भी एलियस के यहाँ से आपको इंटीमेशन आती है ईमेल के थ्रू, उसके ऊपर अमल होना जरूरी है 3 घंटे के अंदर। यदि पैसा आगे चला गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर how to prevent or avoid cyber crime in any tips, sir? Or how to check website, legal website in Google? No. Only method, because Google is a platform provided by this Google for business purpose. They are catching the customers for various products across the world, and you have to only check the reviews of that website, trading websites. After checking the reviews, if you found that these reviews are very much negative, then don't do the business with that trading platform. Yes, that is the only measure, because you can create any app, you can place it on Google, because Google is getting 40% income. Whatever income you are getting from that app, the 40% income is automatically goes to Google. That's why they are promoting various apps. They are only providers. They are providing the platforms. Yes. सर कॉस्मोस बैंक पे जो अटैक हुआ था उसमें बहुत सारा पैसा गया था। अभी बैंकों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उनके सर्वर पे ऐसा कोई अटैक ना हो? अभी वैसे तो बहुत सारे कॉस्मोस बैंक का इंसिडेंट होने के बाद, कॉस्मोस बैंक का इंसिडेंट इसके लिए हो गया था, जो एक्टिव मेमोरी रहती है, जब सिस्टम आपकी ऑन रहती है तब एक मेमोरी होती है, वो सिस्टम बंद होने के बाद मेमोरी निकल जाती है, वो किधर भी स्टोर नहीं होती है। साइबर क्रिमिनल्स ने मालवेयर डाल के उसके पूरे जो कस्टमर का डेटा है वो मैनिपुलेट किया था। और अभी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, जो भी सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, वायरस प्रोटेक्टिंग जो भी फायरवॉल्स वगैरह है, सब ने लगा के रखे। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन नया तरीका अभी देखिए कौन सा बेलारी बैंक में हो गया। तो आपको
टेक्नोलॉजी के साथ ही रहना पड़ेगा। तो कास्मोस का रिपीट नहीं हुआ है, एक ही हो गया था, अभी नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। वो मालवेयर डाला था, एक्टिव मेमोरी में डाला था। ठीक है, मुझे लगता है कि सब क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, तो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much.